Welcome everybody. Today we will see a little bit typical problem of this plane as far as pentagon is going to be concerned. I request you to draw this problem along with me only, and here you need to write down the problem of pentagon. Write down A, B, C, D, E, A, B, C, D, E is a regular pentagon A, B, C, D, E is a regular pentagon of side 50 mm. Of side 50 mm. It is resting on side AB in the VP. It is resting on side AB in the VP and inclined to VP inclined to HP by 30 degree. By 30 degree. It's a corner A. It's a corner A its corner A lies its a corner A lies 25 mm above HP and corner D lies 20 mm in front of VP. Draw the projection and find inclination with HP. Draw the projection
and find inclination with HP. It is a little bit typical problem. So first of all, you will have to see how I am drawing here. Then and then only you will have to draw it in your notebook. First of all, see carefully how it is drawn and then proceed. This is the XY line. Given things are in front of you. First of all, tell me which shape we will have to draw. कौन सा shape हमें draw करना है? Pentagon. We need to draw the pentagon. Okay. और पेंटागन कहां रखा है? एचपी में रखा है या वीपी में रखा है? रीड द प्रॉब्लम. VP. वीपी में रखा है. वीपी में रखा है तो मुझे प्रॉब्लम अबव XY लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा या बिलो XY लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा? अबव XY लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. और कौन सा पार्ट वीपी में रखा है? पेंटागन का. कॉर्नर रखा है, एज रखी है, क्या रखा है? साइड ए बी. साइड ए बी रखी है, यानी कि उसकी एक साइड जो है वो हमें क्या करनी चाहिए? पहले परपेंडिकुलर टू XY लाइन करके लेनी चाहिए. लेकिन उन्होंने आगे जाके एक कंडीशन हमें दी है. एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? कॉर्नर ए लाइज 25 mm above HP and corner D lies 20 mm in front of VP. अंडरलाइन कर लीजिए इस स्टेटमेंट को. ओके. बहुत जगह लगती है इस प्रॉब्लम के लिए, तो बड़े पेज पे ड्रॉ करना है आपको. Corner A means point A. It is lying 25 mm above HP. HP के ऊपर 25 mm है. और हमने देखा है प्रोजेक्शन ऑन लाइन चैप्टर में अबव HP का जो डिस्टेंस होता है वो फ्रंट व्यू से रिलेटेड होता है या टॉप व्यू से रिलेटेड होता है? टॉप व्यू. फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू. अबव HP, ये देखिए, जस्ट अ मिनट, दिस इज द प्लेन. इसके ऊपर का जो पॉइंट होगा वो फ्रंट व्यू में दिखेगा या टॉप व्यू में दिखेगा? फ्रंट व्यू में दिखेगा. सो अबव HP का डिस्टेंस जो है वो फ्रंट व्यू में विजिबल होता है. और इन फ्रंट ऑफ VP का जो डिस्टेंस है, VPC जो रिलेटेड डिस्टेंस है, वो कहां होता है? वो टॉप व्यू में होता है. तो पहले मैं क्या करूंगा? 20 mm पे एक लाइन मार्क करूंगा. एंड आई विल राइट दिस डायमेंशन एज 20. और इसे पॉइंट ए मानते हुए, सॉरी 25 है ये, mm above HP. So this distance is 25. So you need to mark 25 mm.
और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा ए डैश। और ए डैश के ऊपर मैं 50 mm की लाइन मार्क करूंगा, क्योंकि मेरी जो साइड है वो है 50 mm। And this point is my point B dash. अब मैंने आपको बताया था कि पेंटागन कैसे ड्रॉ करना है। उस वक्त जो लोग प्रेजेंट थे, दे might will know about might have known about the how to draw the pentagon. इंटरनल एंगल कितना लेना है मुझे पेंटागन ड्रॉ करते समय? 160। Yes. So on 108 degree, you must draw a line of 50 mm each. And make those line dark. And then by taking 50 mm in compass, you have to name it C dash, and this point will be your D dash. A, B, C, not D dash, E dash. Now by taking this 50 mm in compass, put the needle of your compass on C point and make a curve in this way. And by keeping it on E, make another curve in this way. Join those lines. And complete your pentagon. Then we need to draw its a front view. अब S solution है, ऊपर का निकाल दिया तो मुझे नीचे आना है. So I'll draw a line. And I will draw a projector through each and every point.
this point is D dash. And give the names over here. This is A, comma B. This is C, comma E. And this particular point is the D. So here the first condition is satisfied. Which is the first condition? This corner A lies 25 mm above HP. This condition is satisfied. Okay. Now, they have told that corner D lies 20 mm in front of VP. तो मुझे बताइए कि 20 mm in front of VP, ये जो in front of VP का डिस्टेंस है, ये अबव XY लाइन मार्क होता है या बिलो XY लाइन मार्क होता है? फ्रंट व्यू में मार्क होता है या टॉप व्यू में मार्क होता है? इन फ्रंट ऑफ VP का डिस्टेंस। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जब मैंने सिखाया था तो ये बात बताई थी कि HP डिस्टेंस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द फ्रंट व्यू एंड VP डिस्टेंस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द टॉप व्यू। तो ये जो 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, ये डिस्टेंस कहां मार्क करना पड़ेगा? अबव XY लाइन और बिलो XY लाइन? Below XY line. Below XY line. Absolutely correct. So, like this first line, you will have to draw a line which is 20 mm below XY line. This is the line. You can provide the dimension. And you can write here 20 mm. Now, you will have to mark the first point over here of this A and B. So, I'll mark a point over here. And I will name that particular point as A dash, B dash. And they have told that point D is 20 mm in front of VP. यानी कि point D जो है वो इस line पे आना चाहिए. So what I will do? I will take distance of point AB to D from here, because आपने अगर ऊपर स्टार्ट किया है, नीचे का व्यू ड्रॉ किया है, तो ये जो S सॉल्यूशन है उसके मुताबिक आपको यहाँ नेक्स्ट व्यू आपका नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसके लिए एंगल चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, एंगल नहीं दिया है, पोजीशन दी है। तो पोजीशन क्या है, D पॉइंट इज ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। सो टेक द डिस्टेंस ऑफ दिस AB to D and mark on this line. Draw this line AB to D. And name this point immediately as a D point. And then you can mark this C and E point, this point, on this same line. Means
AB to D line, you will have to just inclined, but inclination is not given, and that's why you will have to draw. आपको A dash, B dash और D जो ये लाइन है ये ड्रॉ करनी है, तो ये नाम होगा AB। ये पॉइंट D ड्रॉ किया और यहां आपको पॉइंट को नाम देना पड़ेगा C, E। ओके, तो देखिए दूसरी कंडीशन जो है वो भी यहां सेटिस्फाई हो गई। कॉर्नर D is 20 mm in front of VP. Now draw the projections from point A to B, C to E and D, and take the locus। C पॉइंट का लोकस, ये B पॉइंट का लोकस, ये D पॉइंट का लोकस, A का लोकस ऑलरेडी है यहां, तो ये जो डायग्राम है वो इस तरीके से आपकी बन गई है। ऐसा नेट प्रिपेयर किया है। नाउ यू विल हैव टू सेट द पॉइंट एंड यू विल हैव टू ड्रॉ इट। ए का प्रोजेक्टर, ए का लोकस, ये आ गया यहाँ A डैश पॉइंट। बी का प्रोजेक्टर, बी का लोकस, ये आपका आ गया B डैश पॉइंट। सी का प्रोजेक्टर, सी का लोकस, यहां आ गया आपका C डैश पॉइंट। डी का प्रोजेक्टर, डी का लोकस, ये आपका आ गया D डैश पॉइंट। और यहां E का एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करना बाकी है, सॉरी E का लोकस ड्रॉ करना बाकी है। यहां आपका आ गया E का प्रोजेक्टर और E का लोकस, चाहे इंटरसेक्ट होता है वो आपका पॉइंट E डैश। नाउ यू विल हैव टू जॉइन दोज पॉइंट्स। आपको क्या करना है, ये पॉइंट जोड़ देने हैं। सो A to B, B to C, C to D, D to E और E to A। रिड्यूस्ड पेंटागन मिलेगा आपको, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ होगा, एंगल बहुत कम है इसलिए ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा, थोड़ा सा रिड्यूस होगा। नाउ अब आपने नीचे का इंक्लिनेशन ड्रॉ किया, इसे आपको मेजर करना है। This inclination you need to measure because this is inclination with VP, जो उन्होंने हमें सर्च करने के लिए कहा है। Inclination with VP। Have you drawn this much? समझ लीजिए फिर ड्रॉ कीजिए। आपने ये ड्रॉ किया है, या ड्रॉ कर रहे हो? Have you drawn it or are you drawing it? Have you drawn it or are you drawing it? 1 minute, sir.
Yeah, means tell me, no, 1 yes, minute. yes. Tell me that you are drawing. So I will wait for the third stage. Because inclination with EHP is always above XY line. तो फर्स्ट ड्रॉ किया, सेकंड व्यू ड्रॉ किया, थर्ड व्यू में ये एंगल इनडायरेक्टली ड्रॉ किया क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी थी डी पॉइंट इज लाइंग, डी कॉर्नर पॉइंट इज लाइंग 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो ये 20 mm डाल के हमने वो कंडीशन वहां लगा दी। ओके, तो हमें इनडायरेक्टली ये इंक्लिनेशन विथ वीपी यहां हो गया। उसके बाद ये फोर्थ व्यू हमने ड्रॉ किया। अब हम ड्रॉ करेंगे फिफ्थ व्यू जो अबव एक्स वाई लाइन होगा और वो इंक्लिनेशन होगी, एंड दैट विल बी विथ योर इंक्लिनेशन विथ एचपी। और उन्होंने वो दिया है, कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। सो दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा 30 डिग्री। और ये जो ए पॉइंट का प्रोजेक्टर है वो जहां कट करता है, दिस इज योर पॉइंट ए डैश। तो हमें पेंटागन कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन पे कट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। सो दिस इज माय ए डैश। अब ए डैश टू बी डैश इतना डिस्टेंस लेना है और यहां मार्क कर देना है। तो मुझे ए बी लाइन मिल जाएगी, ये मिल गई मुझे ए बी लाइन। दिस विल बी माय पॉइंट बी डैश। ऐसे क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी है कि द ए पॉइंट इज लाइंग 25 mm अबव योर एचपी। तो वो कंडीशन लास्ट तक हमें कायम रखनी है, इसलिए ये ए पॉइंट पे हमने ले लिया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ड्रॉ प्रोजेक्टर थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए एंड बी। ये प्रोजेक्टर इस डायरेक्शन में आएंगे बिकॉज प्रोजेक्टर्स आर ऑलवेज 90 डिग्री टू योर लाइन। अब ए पॉइंट से ये ई का जो प्रोजेक्टर पास होता है, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है। देखिए कौन सा डिस्टेंस लेना है, आई एम टेलिंग यू दिस डिस्टेंस यू नीड टू टेक इन अ कंपास। ए से ई के लोकस तक का डिस्टेंस, और ए से वो यहां मार्क कर देना है। सिमिलरली बी से सी के प्रोजेक्टर तक का डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है और वो यहां मार्क कर देना है। और ए या बी पॉइंट से इस डी के लोकस तक का डिस्टेंस आपको लेना है और वो यहां मार्क कर देना। 3 पॉइंट आपको मिलेंगे जिससे आप प्रोजेक्टर ड्रॉ कर सकेंगे। ए के साइड को आएगा ई का प्रोजेक्टर, बी के साइड को आएगा सी का प्रोजेक्टर, और सेंटर में आएगा ये डी का प्रोजेक्टर। सो ये एरो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किए हैं। नेट बनाना है हमें।
तो इस तरीके से 5 लाइंस बन जाती है। ये 5 लाइंस कौन सी है? ये 5 लाइंस होंगी ये लाइन, ये लाइन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये 5 लाइनें हमने यहां बना दी है। अब हमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है, यानी ये लाइन और ये लाइन। तो क्या कीजिएगा, ए से इस डी के पॉइंट तक का डिस्टेंस कंपास में ले लीजिएगा और वो यहां मार्क कर दीजिए। दिस विल बी योर पॉइंट ई। और उसके बाद वहां से एक लोकस ड्रॉ कर दीजिए। देन टेक दिस मच डिस्टेंस इन कंपास। कहां से? इस ए बी के लाइन से इस सी डी के लोकस तक। और ये डिस्टेंस कंपास में लेके आपको क्या करना है, यहां मार्क करना है। यहां आएगा आपका पॉइंट ई डैश। ये डी डैश, ये जो पॉइंट कॉर्नर का होगा वो होगा सी डैश। यानी कि ये जो पेंटागन आ गया है, ये पेंटागन मैंने क्या कर दिया है, यहां रीड्रॉ कर दिया 30 डिग्री के इंक्लिनेशन। एंड देन I will have to join it with the lines. तो B से C तक, C से D तक, D से E तक और E से A तक। ये पेंटागन मैंने बना दिया। अब इस 5th स्टेज के बाद मेरी आएगी 6th स्टेज, जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा। वो कहाँ आएगी? नीचे आएगी, नीचे की तरफ आएगी। ओके, तो वो कैसी ड्रॉ करनी है वो ये आप सबको पता है। You need to take its projector in downward direction. ये A का प्रोजेक्टर मैं नीचे लेता हूं, ये B का लेता हूं, ये C का बहुत नजदीक आता है, C का लेता हूं, D का भी A के बहुत नजदीक आता है, तो ये D का लेता हूं और यहां E का लेता हूं। लेकिन ये इतना दूर निकालने की जरूरत ही नहीं है। सो what I'll do, I'll draw short things, otherwise you may copy me. ये A का प्रोजेक्टर, ये B का प्रोजेक्टर, ये C का प्रोजेक्टर, ये D का प्रोजेक्टर,
और ये ई का प्रोजेक्टर। देखिए नजदीक आते हैं दो प्रोजेक्टर बहुत एक दूसरे के। अब डी के पॉइंट से यहां लोकस निकाला है, ए बी पॉइंट ये एक्स वाई पे ही है, तो मैं सी का एक लोकस यहां निकाल लेता हूं एंड देन आई विल प्रोवाइड द नेम्स टू माय पॉइंट्स। ये ए का प्रोजेक्टर और ए का लोकस, तो ये हो गया मेरा ए पॉइंट यहां, इस एक्स वाई लाइन पे मेरा ए पॉइंट। देन ये बी का प्रोजेक्ट और बी का लोकस, ये हो गया मेरा बी पॉइंट। सी का प्रोजेक्टर और सी का लोकस, ये हो गया मेरा सी पॉइंट। देन डी का प्रोजेक्टर और डी का लोकस, ये हो गया मेरा डी पॉइंट। और ई का प्रोजेक्टर और ई का लोकस, ये हो गया मेरा ई पॉइंट। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं नाम देता हूं और उन्हें जोड़ देता हूं। एंड आई विल ज्वाइन इट, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए। ये देखिए आपका पेंटागन बहुत ही छोटा, कॉम्पैक्ट और कॉम्प्रेस्ड आपका पेंटागन आ जाएगा। Are you drawing it?
pentagonal plane 30 mm side, 30 mm side has its side in the HP, has its side in the HP. In the HP. Complete the projection. Complete the projection when complete the projection when complete the projection when the surface makes 30-degree inclination, 30-degree inclination with HP, 30-degree inclination with HP, and the side makes 45 degree to VP, 45 degree to VP. तो इसका सॉल्यूशन कैसे आता है ये मैं बताता हूं. इट इज इन HP, तो HP में है तो आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा नीचे से. नीचे आपको ये ऐसा पेंटागन ड्रॉ करना है. उसको यहां फ्रंट व्यू पे लेना है. फिर इस लाइन को इंक्लाइन टू HP करना है. इसके प्रोजेक्शन नीचे लेने हैं. इसके जो लोकस हैं वो मार्क करने हैं. और यहां आपको पेंटागन बनाना है. यहां इंक्लिनेशन 45 डिग्री का ड्रॉ करना है. और ये जो पेंटागन है ये पेंटागन फिर से आपको यहां रिकंस्ट्रक्ट करना है. इसके पॉइंट्स ऊपर ले जाने हैं आपको. और यहां से लोकस लेने हैं. और यहाँ ये आपका ऊपर का जो पेंटागन आएगा वो ऐसे आ जाएगा. A से B तक, B से C तक, C से D तक, D से E तक, E से F तक. ऐसे पेंटागन आपका बन जाएगा. So such kind of the solution will be observed. Keep in mind
And today you will have to complete this homework. Okay, so I'll stop my lecture here itself. Have a nice day. Enjoy the evening. Thank you very much. If any doubt is there, you can ask now. We have still 2 to 3 minutes.